نور کا دریا بہا اور گم اندھیرا ہو گیا، نور کا دریا بہا اور گم اندھیرا ہو گیا، آپ کے آنے سے عزت میں اضافہ ہو گیا، آپ کے آنے سے عزت میں اضافہ ہو گیا۔ 2 سیشن ہوتے ہیں، پہلے سیشن میں ہمارا یہ ڈسکشن یا بکس کا ہو جائے گا، اس کے بعد ہم شعر و شاعری سنیں گے آپ سے۔ چیز کی ہے کچن سے قلم تک، تو ہم تھوڑی سی بات اس پر بھی کریں گے۔ اور میں بالکل سیکھنے کی بھی کوششیں کرتی رہتی ہوں لگاتار، اور میرا حوصلہ بڑھائیے۔ بس میں تو اتنا ہی کہوں گی آپ لوگوں سے۔ تو میں سب سے پہلے جاننا چاہتی ہوں حنا صاحبہ سے، کیونکہ وہ میری فرینڈ بھی ہیں اور انہوں نے میری کتاب ضرور پڑھی ہوگی۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ میری کتاب کچن سے قلم تک میں آپ کو کیا اچھا لگا، یا کون سی غزل آپ کو اچھی لگی؟ مجھے کئی غزلیں، میں نے تو کافی پڑھی آپ کی کتاب، اور اس بار تو میں لائی نہیں آپ کی کتاب، تو ان سے ہی میں نے مانگی اور پھر انہوں نے مجھے دی، تو میں نے کچھ اپنے شعر کے مقابلے میں جی بالکل کہ ایک یہ کہ دل کو پتھر بنایا سہا ہم نے سب، اشک تھے موم جیسے پگھلتے رہے، اور مشکلوں نے ہمیں منزلیں بخش دی، ہم بھی گرتے رہے اور سہتے رہے۔ بہت اچھا شعر ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ان کی شاعری میں ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ جو طاہرہ آپا کہتی ہے کہ شاعر تو سب ہوتے ہیں، لیکن جو اپنی بات کرے اور دنیا کی بھی بات کرے، تو دنیا کی اور دنیا کے غم کی بات کرے۔ آپ کی شاعری میں مجھے دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ غم دنیا بھی ہے، غم زمانہ بھی ہے، اور غم اپنا غم تو ظاہر ہے ہر انسان کا غم ہوتا ہے، تو وہ بھی شاعری میں شامل ہو ہی جاتا ہے اگر اپنی بات کوئی کہتا ہے، اور وہی بات دل تک پہنچتی ہے جو انسان اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ تو ایک شعر ان کا مجھے، 2 شعر مجھے یہ بھی اچھے لگے تھے کہ ہاتھ میں قلم لے کے کشمکش میں بیٹھے تھے، سامنے حقیقت تھی جس کو خواب لکھنا تھا، اور رات کی حمایت میں ایک ہجوم آ پہنچا جس گھڑی اجالے کو آفتاب دام لکھنا تھا۔ بہت عمدہ اور بہت بہت مبارکباد آپ کو، آپ کی کچن سے بھی میں بہت اچھی طرح واقف ہوں، اور ان کا واقعی میں کچن سے قلم تک میں دونوں جگہ یہ اپنے اس میں کامیاب ہیں، اس کے لیے ان کو بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ حنا صاحبہ۔ طاہرہ والے سے بھی میں کچھ جاننا چاہوں گی اس کتاب کے بارے میں، آپ کو پڑھ کے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میری کتاب آپ نے پڑھی ہے کچن سے قلم تک، تو آپ کے کچھ تاثرات ہم سننا چاہیں گے۔ تھوڑا سا لکھ لیتی ہوں، اچھی بات بولنے میں مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے، بولی نہیں میں لکھ کے۔ ایک بات میں کہوں گی کہ ساجدہ کی یہ کتاب جو ہے، میں اسے ایز اے ویمن ایکٹیوسٹ تمام عورتوں کے لیے انسپریشن دیکھ رہی ہوں۔ وہ تمام عورتیں جو اپنے اندر یہ ٹیلنٹ رکھتی ہیں، کیونکہ میں برابر دیکھتی ہوں کہ ایسی بہت سی خواتین ہمیں ملتی ہیں جو کہتی ہیں ہمیں شعر و شاعری کا شوق ہے، ہم کچھ لکھتے بھی ہیں، کچھ ارے باجی بس تو بندی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھا ہی لکھتی ہے، اور وہ کچن میں لکھ رہی ہوتی ہیں، پرچے پہ کہیں رکھ دیتی ہیں، کوئی ایک ڈائری ہوتی ہے جس کو وہ چھپا کے رکھتی ہے سب کی نظروں سے کہ دکھے نا، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلے گا لکھ رہے ہیں، ہم صحیح لکھ رہے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ جو ساجدہ نے یہ اپنی لکھی ہے، میں اس کو صرف شعر و شاعری کی کتاب نہیں مانتی ہوں، میں ان کا سفر نامہ مانتی ہوں۔ وہ سفر نامہ جس میں اسٹرگل بھی ہے، جس میں جذبہ بھی ہے، جس میں حوصلہ بھی ہے، کیونکہ جب حوصلہ ان تینوں چیزوں کے بعد 3rd اسٹیج آئی تب انہوں نے اس کو قلم بند کر دیا، اپنے قلم کو اس پہ کاغذ پہ کبھی ایک تلوار کی طرح چلایا، کیونکہ میں نے جو ان کی غزلیں جو پڑھی ہیں غزلیں میں، اس میں مجھے یہ بہت چیزیں صاف دکھی۔ سجا دینا ستاروں کی طرح بچوں کی تقدیریں، ہے خواہش ماں کی آنکھوں میں نہ ان کی نمی رہے، نبی دے تو ہاں نبی دے۔ تو یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو زمانے میں جدوجہد چل رہی، میں نے کہا تھا نا کہ شاید بچیوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، تو اس معاشرے کی کشمکش کو انہوں نے 2 لائنوں میں اتار دیا ہے اس شعر میں، اور یہ مجھے اچھا لگا کہ اس طرح کا شعر لکھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ایک یہ چیز بھی انہوں نے لکھی ہے، خود رعایا پر لاکھ آفت ہو۔ دیکھیے یہ آدمی کا ذہن اگر جو کچھ چل رہا ہے اس پہ بھی ہے،
شاعر وہی، جیسے میں نے فیض اور مجاز کی بات کی تھی اور ساحر کی بات میں کرتی ہوں. ساحر میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. خود رعایا پر لاکھوں آفت ہو، قد شہنشاہ کا سلامت ہو، شہنشاہ کا سلامت. سلامت رہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس طرح کی شاعری کو لکھنا. اور دیکھیے ایک ان کا اور شعر ہے، جو کھا کے امیروں کے بچے چھوڑ دیتے ہیں، غریب لوگوں کے بچوں کا وہ نوالا ہے. آپ یہ سوچیے جو زمانے میں چل رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے، جو آکسفیم کہہ رہا ہے، ہنگر انڈیکس میں ہم کہاں ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شعر و شاعری کا یہاں پر ایک بزم سجی ہے. باجی میں ایک بار بیچ میں آپ کو روکنا چاہوں گی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں نے کہا نا، شاعر اپنی آنکھوں سے جو دیکھتا ہے اسی کو قلم بند کرتا ہے. اور اس میں ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ پھولوں کی طرح نرم نازک ہے یہ، لیکن یہ عورت کے لیے کہہ رہی ہے، پڑ جائے اگر وقت تو شمشیر ہے. تو واقعی بہت آپ کے حوصلے کو سلام. اور خوشی ہوئی جب میں نے کتاب پڑھا، کچھ یہ چند شعر مجھے بے انتہا پسند آئے، تو مجھے لگا کہ آگے چل کر جو خلا ہے اس کو ایک آپ لوگ کو کہنا سب، مطلب میں خواتین کی بات کر رہی ہوں، اور تو شاید تو ہمارے سوا تمام ہیں جس خلے کو بھریں گے، لیکن آپ لوگ ضرور اس کو ایک ویکیوم جو ہے اس کو فل کریں. شفیع صاحب، غزل تو خیر اور اہل سخن کا جادو ہے. غزل تو خیر ہر اہل سخن کا جادو ہے، مگر یہ نو پلک میرے فن کا جادو ہے. کیا بات ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترمہ ساجدہ صبا صاحبہ کو کہ سلسلہ ادب کا انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ جس سے ہم مختلف ادباء اور شعراء کی تخلیقات سے متعارف ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کو سمجھنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ وہ شعراء، وہ ادباء جو ہماری نگاہوں سے دور ہیں، ہم انہیں اسی بہانے سے پڑھ لیتے ہیں. تو اب مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ کچن سے قلم تک، جو ساجدہ صبا صاحبہ کی کتاب ہے. ساجدہ صبا صاحبہ کو بھی طاہرہ باجی نے کہا تھا کہ میں نے کچن میں نہیں دیکھا ہے، ابھی خالی ادب تک ہے معاملہ، لیکن میں نے انہیں کچن میں بھی دیکھا ہے اور اسٹیج پہ بھی دیکھا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ ساجدہ صبا کچن سے دنیا کو دیکھتی ہیں. ان کی کچن میں ایک روزن ہے، اس روزن سے یہ دنیا کو دیکھتی ہیں، اور کبھی کبھی دنیا کو کچن دکھاتی ہیں. اور ادبی ذائقے بھی جو ان کی کتاب میں قلم سے کچن تک میں آپ دیکھیں گے. حالانکہ مجھے ان کی کتاب کا نام بالکل بھی پسند نہیں ہے، انتہائی غیر شاعرانہ نام ہے، مگر انہیں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کی فرمائش پر انہیں نے وہ نام رکھا ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے اظہار کیا کہ ان کی کتاب کا نام بالکل غیر شاعرانہ ہے، کیونکہ کتاب بہت شاعرانہ ہے. کتاب کے اندر بھرپور شاعری ہے اور نام کے اندر بالکل شاعری نہیں ہے. یہ بات میں نے اٹھائی تھی اسی وقت، لیکن بیٹے نے جو بات کہی تھی وہ بات وہ کھینچتی ہے. میں نے بعد میں محسوس کیا کچن سے قلم، تو اس نے کہا کہ ممی آپ یہی رکھیے. دیکھیے باجی، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کتاب کو خالی، تو ہمیں لگتا ہے کوئی افسانے کی کتاب ہے یا کوئی ناول کا ٹائٹل ہے. کیوں تاج بھائی آپ میری رائے سے ہے نا تائید کریں گے، تو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، شاعرانہ نام نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یقین جانیے ایک بہت ہی اچھی شاعرہ سے ملاقات ہماری ہوتی ہے. اس کے اندر ایک ایسی شاعرہ کہ جب کلی مسکتی ہے، اس کے مسکنے کی جو آواز ہوتی ہے اسے وہ شعروں میں قید کرنے کا ہنر جانتی ہے. مسکنے سے کلی جب چٹکتی ہے اور چٹکنے کی جو آواز ہوتی ہے اسے بھی اسے شعروں میں ڈھالنے کا ہنر آتا ہے. پھر چٹکنے کے بعد جب وہ کھلتی ہے اور کھل کے پھول بنتی ہے، تو پھول کی خوشبوئیں جب زمانے کو معطر کرتی ہیں تو اس خوشبو کو بھی اسے اپنے شعروں میں قید کرنے کا ہنر آتا ہے. اس شاعرہ کا نام ساجدہ صبا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جب پھول کھلتے ہیں تو ساجدہ شعر کہتی ہیں، جب اشک طلوع ہوتے ہیں تو ساجدہ شعر کہتی ہیں، جب کسی یتیم کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اس ٹپکے ہوئے آنسو میں حسن کو تلاش کرتی ہیں اور پھر اسے شعر بنا دیتی ہیں. ایک کسان
एक मजदूर खेत में हल चलाता है और हल चलाते वक्त उसकी पेशानी से जो कतरा टपकता है, उस कतरे को शायरी में ढालने का हुनर जो शायरा जानती है, उसका नाम है साजिदा सबा। साजिदा सबा की शायरी के जो मरकज़ी मौज़ूआत हैं वो वही हैं जो हमारी शायरी के मौज़ूआत अज़ल से रहे हैं, जब से शायरी का आगाज़ हुआ है। खा वो शायरी उर्दू की रही हो या उर्दू ने फ़ारसी से मुस्तार ली या फ़ारसी ने अरबी से मुस्तार ली, तो एक सिलसिला है वो मुस्तार लेने का, इब्रानी तक जाता है, लेकिन मौज़ूआत कभी नहीं बदले शायरी की। तीन ही चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमेशा मरकज़ी मौजू बनकर रही हैं। लहजे बदले हैं, अंदाज बदले हैं, उसलूब बदले हैं, लेकिन जो मौज़ूआत भी आज हम असली मौज़ूआत कहते हैं वो सब इन तीन के दायरे में आ जाएंगे जो अज़ल से हमारी शायरी का मौजू रहे हैं। वो हैं हुस्न, इश्क और गम। ये तीन ऐसे जज्बे हैं जो हमारी शायरी में रोज़े अव्वल से पाए जाते हैं। और आज की जो शायरी है, चाहे वो ताज रिज़वी की शायरी हो, चाहे वो हिना हैदर की शायरी हो, चाहे उमैर मंज़र की शायरी हो, चाहे आमिर फारूक साहब की शायरी हो, ये सब मौज़ूआत वो हैं जो आज तक हमें अपने अंदर महसूस किए हुए हैं। हम इन मौज़ूआत से आज़ाद नहीं हो सके हैं, और जब तक इंसान ज़िंदा है इनसे आज़ाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुस्न, इश्क और गम ये हमारी असास और बुनियाद है। और यही साजिदा सबा की शायरी का असल मौजू है। इनके यहाँ दास्तान हुस्न भी है, इनके यहाँ किस्सा इश्क भी है, और इनके यहाँ गम का बेहतरीन बयान भी है। एक शेर है बहुत मशहूर, किसी लखनऊ के क्लासिकल शायर का है, शायद आप लोगों में किसी को नाम याद हो तो बता भी सकते हैं, मगर शेर बहुत मशहूर है कि एक ज़रा आपको ज़हमत होगी, एक ज़रा आपको ज़हमत होगी, आपके पाँव के नीचे दिल है। एक लहजा देखिए, ज़बान देखिए लखनऊ की, तहज़ीब मुकम्मल इस शेर के अंदर है। एक ज़रा आपको ज़हमत होगी, है ना, सारा कुछ कह दिया इसके अंदर, आपके पाँव के नीचे दिल है। अब ये देखिए लफ्ज़ दिल का इस्तेमाल साजिदा सबा कैसे करती हैं, क्या खूबसूरत अंदाज है और क्या खूबसूरत लहजा है। कहती हैं कि इस बदन की कौन सी शय पर है तुमको इतना नाज, इस बदन की कौन सी शय पर है तुमको इतना नाज, एक तरफ छोटा सा दिल है, एक तरफ नन्ही सी जान। लहजा ये है, अंदाज है। या कहती हैं कि दावा ये था ज़मीन पे सूरज को लाएंगे। असली हिस्सियत जिस मुआशरे और जिस समाज में हम जी रहे हैं और जो हमारे साहिबान खुदा हैं, उनके वादे, उनके दावे आपकी निगाहों में होंगे। और अब आप देखें किस तरह से साजिदा सबा उन चीज़ों को इंतहाई शाइस्तगी के साथ, नफासत के साथ, नज़ाकत के साथ अपनी शायरी में जगह देती हैं। कहती हैं दावा ये था ज़मीन पर सूरज को लाएंगे, एक पल ही में वो शमा की सूरत पिघल गए, एक पल ही में वो शमा की सूरत पिघल गए। या जो हमारे यहाँ की सच्चाइयाँ हैं, जिसकी तरफ अभी ताहिरा बाजी ने इशारा किया था कि वो बड़ी खूबसूरती से साजिदा सबा के यहाँ आती हैं, और इस तरफ वो शोरा नहीं आते जो एक बहुत ज़्यादा बुलंदी ख्याल और मानी आफरीनी के अमल में उलझे रहते हैं। इस तरह की शायराएँ हैं जो वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ तक वो शोरा भी नहीं पहुँच रहे हैं, कि जिन्हें हम बहुत बड़ा शायर समझ रहे हैं, और कभी कभी जिन्हें हम छोटा शायर समझ के, शायर समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, वो वहाँ तक पहुँचते हैं। आप देखिए हमारे ज़माने की एक बहुत बड़ी सच्चाई जिसे हमने जिया भी है और देखा भी है। अभी हाल ही इसी लखनऊ में भी एक वाक़या पेश आया था। आप देखें, कहती हैं कि बस्ती के हर मकान को खतरे में डालकर, बस्ती के हर मकान को खतरे में डालकर मेहमान अपनी जेबों को भरकर निकल गए, मेहमान अपनी जेबों को भरकर निकल गए। क्योंकि जब बात आती है महबूब की, ये सारी दुनिया के काम करके थक थका के जब ये घर में आती हैं तो इनका महबूब भी कोई और नहीं है, अपना खुद का शौहर है। और जब उसको देखती हैं तो ये सारा रंज, सारा गम, सारा मलाल, सारी थकावट दूर करती हैं और कहती हैं कि ज़िंदगी ने जो हमें दी थी घुटन भूल गए, ज़िंदगी ने जो हमें दी थी घुटन भूल गए, उसकी आंखों में जो देखा तो थकन भूल गए। तो ये आंखें हैं जो साजिदा सबा
अपनी आंखों से इस तरह से उर्दू शायरी के मंजरनामे को पेश करती हैं। अब अगर इसी आंखों के मंजरनामे को अगर हम वापस चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो देखिए कहाँ तक पहुँचाती हैं ये आंखें। मीर नसीर बाकरी ने कहा था कि अपनी आंखों के समंदर में ऊपर जाने दें। हिना से अब ऊपर की तरफ चल रहे हैं और अभी जाके मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, साइदा सवाल लो कि अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, मेरे महबूब मुझे डूब के मर जाने दे। ये आंखें इन्होंने किस अंदाज में पेश की और आंखें नज़ीर बाकरी ने किस अंदाज में पेश की और आंखें आप अस्कर गोल्डी किस तरह से पेश करते हैं उर्दू में। आप देखें, कहते हैं कि होता है राज़े इश्क व मोहब्बत इन्हीं से फाश, होता है राज़े इश्क व मोहब्बत इन्हीं से फाश, आंखें जुबान नहीं है मगर बेजुबान है। या फिर इसी सिलसिले को जब और आगे पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप मीर तक आएंगे तो मीर उन्नीन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। और जब वली तक आएंगे तो वली कहते हैं कुछ लब की सिफत लाले बदख्शां से कहूँगा, जादू में तेरे नैन गजाला से कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। किचन से कलम तक दरअसल सिर्फ ये एक नाम नहीं है बल्कि मेरे हिसाब से ये एक इनकलाबी नारा है, किचन से कलम तक। और देखिए किताबों के नाम आम नाम होते हैं, आजकल चलते हैं, उससे मुख्तलिफ है, कभी तो खास है ना, कभी तो वो खींचता है अपनी तरफ। तो बहुत खूबसूरत नाम है किचन से कलम तक, और ये नाम रखने की आपने जो हिम्मत की है उसकी मैं बात बता देता हूँ, क्योंकि औरतों को ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि वो किचन में काम करते हैं, जबकि वो उनकी बहुत बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल सही कहा। और वो ताकत जो है वो कलम तक पहुंची है, वो और बड़ी चीज़ है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज सवाल आपकी शायरी का, तो भाई ने तो काफ़ी लंबी चौड़ी तकरीर दे दी है, तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। मुझे जो आपकी शायरी में जो ख़ास बात नज़र आई है वो ये है कि आप रदीफ़ें बड़ी मखसूस इस्तेमाल करती हैं। लंबी रदीफ़ें होती हैं, 2 हरफी 3 हरफी, कभी कभी 4 हरफी भी होती हैं, और उससे बड़ी बात पैदा होती है जो एक मखसूस चीज़ है आपकी शायरी में। दरअसल ख्याल की जो बंदिश है वो तो सब यहाँ होती है, लेकिन उसको और रदीफ़ को निभाना, आप मुश्किल रदीफ़ को निभाती हैं बड़ी खूबसूरती से और बड़ी आम फहम शेर कहती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप किसी को लुग़त देखनी पड़े या बहुत ज़्यादा सर खपाना पड़े। जी जी जी, तो वो बड़ी खूबसूरती से शेर कहे जाते हैं और रदीफ़ बड़ी मुश्किल होती है, उसमें शेर निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये ख़ास बात है आपकी शायरी की जो मैंने महसूस की, और ये बड़ी बात है। इंशाअल्लाह आपकी ये खुसूसियत आपको आगे ले जाएगी। समाज का जो सबसे मोतबर कह लीजिए या सबसे मुतहर्रिक कह लीजिए, यानी सहाफ़त है, सियासत है, माशरत है। माशरत में तो कह चुका सहाफ़त और सियासत, इस हवाले से ही यानी जिसे कहते हैं कि माजी करीब की आँख से देखने की कोशिश की गई। मैं हाल नहीं कह रहा हूँ जानबूझ करके, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को माजी करीब की आँख से देखने की कोशिश की गई है, और कोई न कोई ऐसा मजमून बांधा गया है या कोई न कोई ऐसा पहलू उसमें पैदा करने की कोशिश की गई है कि शेर सपाट बयानियाँ नहीं है, बल्कि उसमें मानवीयत और अपने दर्द या कर्म का इजहार भी हो चुका है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये मजमूआ पढ़ने वाले के लिए, और एक जो सबसे नुमाया खूबी है कि अगर ये देवनागरी में न लिखती तब भी पढ़ने वाले को किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि मैंने कहा कि बेशुमार मिसरे ऐसे हैं जो सीधी सीधे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत ही उम्दा आपने बातें करी। बंद आंखें हो तो अफवाह सुनाई देगी, ठहरे पानी में फकत काई दिखाई देगी, ठहरे पानी में फकत काई दिखाई देगी। जब उनके पहले मजमूए किचन से कलम तक का रस्म इजरा हुआ तो हस्ब दस्तूर तो एक खातून शायरा से हमारी भी उम्मीद, शीरी लबो लहजे में फूल, खुशबू, प्यार, वफा और कहीं कहीं आधी दुनिया के नर्म नाजुक मसाइल होने चाहिए थे।
मगर साजदा सबा को जानने के बायस कह सकता हूँ कि उनसे मेरी तवक्को उससे कहीं ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका अधूरेपन में यकीन नहीं है। वो जो भी कहती करती हैं पूरे दिल और खुद एतमादी से करती हैं। मुझे खुशी है वो आधी नहीं पूरी दुनिया की जिम्मेदार शहरी की तरह इस मजबूर में अदब में इसका अंजाम दर्द है तो है हजरत मर्द इसका एहसास कर भी ले, मगर कोई महवश इसके आगे भी समझ और समझा सकती है, वो भी बाआसानी। तेरे बज़ में जिक्र किसका हुआ, तेरे बज़ में जिक्र किसका हुआ, जो आंखों का काजल फैला हुआ, जो आंखों का काजल फैला हुआ। अजब बात है तेरे लहजे में कुछ। साजदा सबा की शायरी में वो एक भरी पूरी दुनिया को बस अपने किचन की खिड़की से ही नहीं देखती, ना ही अपनी दहलीज से महल छान कर देखती है, बल्कि वो दहलीज लांघ कर धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी, तपन, थकन का तजुर्बा करती है और फिर उन एहसासात को कलमबंद करती है। उन्हें अपने वतन अजीज़ का सियासी मंजर और पस मंजर, समाजी और मजहबी मसाइल सबका इल्म है। मेरे नज़दीक इस तरह से साफ और खुले तौर पर मुल्की हालात पर बात करने वाली शायरा, ये बहुत बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ साजदा सबा के हवाले से, कि मेरे नज़दीक इस तरह से साफ और खुले तौर पर मुल्की हालात पर बात करने वाली शायरा उर्दू अदब में बहुत कम है। शायरा साजदा सबा का अपना मुनफरिद लहजा है जो कि उनकी अपनी शिनाख्त भी है। आप हाकिम हैं तो कानों को खुला रखें सदा, आप हाकिम हैं तो कानों को खुला रखें सदा, ये रियाया है तो अपनी ही दुहाई देगी, ये रियाया है तो अपनी ही दुहाई देगी। कितने मजलूम चढ़े सूली पे ईसा की तरह, क्या अदालत कभी इस पर भी सफाई देगी, क्या अदालत कभी इस पर भी सफाई देगी। हर शहर में खौफ का बिखरा हुआ माहौल, तू याद न कर अब वो खुली छत के ज़माने, तू याद न कर अब वो खुली छत के ज़माने। साजदा सबा को पता है वो क्या कर रही हैं, मगर उन्हें नमरूद वक्त से डर नहीं लगता। वो अपने किचन में चूल्हे की आग को जहाँ आतिश गुल समझती हैं तो आतिश फुशाओं से भी उछलती चलती हैं। ये माना आजकल खामोश रहना कामयाबी है, मगर हम क्या करें क्या करें जो सहन का जो इख्तलाफी है। हमें डांट भी पड़ती है इस वजह से घर पर। इन सब के बावजूद साजदा सबा बहरान खातून है, मशरकी खातून, जिनके पास उनके अपने खट्टे मीठे जज्बात, ख्वाब और हकीकत है। वो खानादारी का सफ़र भी तय करती हैं और उसे बसर भी, वो भी पूरी खुशनुदी के साथ, क्योंकि पाँव चादर से बाहर निकाले नहीं, शौक हद से ज़्यादा पाले नहीं, शौक हद से भी ज़्यादा, आप अभी कह रही थी ना, पाँव चादर से बाहर निकाले नहीं, शौक हद से ज़्यादा पाले नहीं उम्मीद करते हैं कोई हमको संभालेगा, यहाँ जीने के खुद ही रास्ते हमने निकाले हैं। मगर शेर व अदब के अपने भी कुछ तकाजे होते हैं। साजदा सबा भी इससे बदतर तो नहीं है, तभी लिखती हैं, हमें आंसुओं में डुबोता रहेगा ये इश्क, हंस हंस के रोता रहेगा। अकेली जब गुजरती हूँ पुरानी रहगुजर से मैं, तो फूलों से लदी डाली का मंजर ओढ़ लेती हूँ। आखिर में कहना चाहूँगा कि साजदा सबा की शायरी में जहाँ उम्मीदों के सब्ज़ पत्ते फूटते दिखाई देते हैं, वहीं गर्दिश अय्याम में कितने ही बिखरते ख्वाबों के सूखे पत्ते भी फूटते हैं। जैसा कि वो कहती भी हैं, धूप ने मुस्कुरा के हमसे कहा, प्यास करती है बात पानी की, किचन से कलम तक की साजदा सबा से दिखाया था मुझे। लेकिन इनका टाइटल पे ही मैं बात करना चाह रही हूँ, सिर्फ 2 लफ्ज़ कि टाइटल इतना फैसिनेटिंग है, इतना अट्रैक्टिव है, इतना यूनिक है, इतना डिफरेंट है कि वो अपने आप में फैसिनेट करता है, अपने आप में क्यूरियसिटी जगाता है कि आप इस किताब को पढ़ें, इस किताब के अंदर जाएँ। मर्द हजरात को ये टाइटल शायद इसलिए अट्रैक्ट करेगा, शायद थोड़ा मतलब एरोगेंस भी आए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लेडी किचन से कलम तक पहुंच जाए, हमारा बराबर खड़ी हो जाए। और लड़कियों को और लेडीज़ को इसलिए फैसिनेट करेगा कि उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ से उठ करके अर्श तक चले जाएँ। तो मुझे तो लगता है टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है। अगर आप में से यूपी बोर्ड में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी हुआ करती थी, उसने कहा था, उसके लिए यही कमेंट किया जाता था कि टाइटल इतना यूनिक है, सिर्फ उस एक कहानी की बदौलत वो वर्ल्ड फेमस राइटर हो गए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ एक दिन ये भी इसी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही ये भी इतनी गुफ्तगू इस किताब पर हो चुकी है और काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, लिहाजा मेरे कहने के लिए बाकी बहुत कुछ बचा नहीं है।
अच्छा, इत्तेफाक से मैंने भी ये किताब बस देखी है और इसका टाइटल देखा है, मगर हाँ दौरान गुफ्तगू हमारे जो नाक़दीन, हमारे मुबस्सिरीन हैं, उन्होंने जो अशार सुनाए वो यकीनन इस बात पर दलालत करते हैं कि साजिदा सबा न सिर्फ ये कि ऐसे अशार कहने में कामयाब रही हैं कि जो इंसान को जज्बी सतह पर मुतहर्रिक करते हैं, बल्कि इंसानी फ़िक्र को भी मुतहर्रिक करने वाले अशार साजिदा सबा ने कहे हैं कि जिनका लेना देना, जिनका मकसूद सिर्फ इश्क, मोहब्बत, नाजुक एहसासात नहीं है, बल्कि ये कायनात, इस कायनात से मुताल्लिक़ समाजी, सियासी और माशी मसाइल, वो मसाइल के जो ख़वातीन को दरपेश होते हैं, वो मसाइल जो ख़वातीन की वजह से दुनिया को दरपेश होते हैं, और वो मसाइल के जो दुनिया की वजह से ख़वातीन को दरपेश होते हैं, तमाम मसाइल का अहाता साजिदा सबा ने अपनी शायरी में किया है। काबिल मुबारकबाद है साजिदा सबा, और मेरी तहे दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और ये उम्मीद है कि मज़ीद उनकी शायरी में निखार आता रहेगा, वो अच्छे अशार कहती रहेंगी। मैं अपनी बात सिर्फ एक कलमे के बाद ख़त्म कर दूँगा। कलाम मंजूम क्या है और शेर क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो शायर के लिए शेर कहना बहुत आसान हो जाता है। कलाम मंजूम ऐसे मिसरे के जो वज़न में हो और जिनमें एक बात कह दी गई हो, वो कलाम मंजूम है। और शेर वही कलाम मंजूम जब अपने हर लफ्ज़ के लिए सनद रखने लगे तो वो कलाम मंजूम शेर बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि साजिदा सबा आइंदा अपनी गज़लों में, अपनी शायरी में इस बात का ख्याल रखते हुए शेर कहेंगी कि उनके अशार कलाम मंजूम की जिहद से आगे बढ़ते हुए और शेर के पैकर में ढलने लग जाए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया तालिब, मैं बिल्कुल आपकी ये बात याद रखूँगी।